नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ श्रीवास्तव। I have secured All India Rank 118 this time in UPSC Civil Services Examination 2023. It has been a really long journey, I would say, और 6 साल लग गए मुझे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। I did my BTech in Mechanical Engineering from IIT BHU वाराणसी। 2017 में I passed out. उसके बाद I got placed in as a graduate engineer trainee in Maruti Suzuki. However, I decided not to join it and went on to take a plunge into this unfathomable sea of UPSC. So 2017 में I started. I still remember that on 19th June 2017 I had come here and I had said to myself कि यहाँ पे पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है. But as destiny had it, कहीं ना कहीं ये षड्वार्षिक योजना बन गई. It took me more than 6 years. In fact, इस साल 19 जून को it will be like 7 years, right? So 2018 में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया था. एंड इतना स्ट्रेंज रहती हैं चीज़ें कि क्या बताऊँ आपको. जब मैंने पहला प्रीलिम्स दिया आई वाज वेल प्रिपेयर्ड आई थिंक, बट वहाँ सेंटर पे आई वेंट तो क्या हुआ कि व्हेन वी हैव टू फिल द OMRs वहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं एंड उसके नीचे बबल्स होते हैं. सो इन द ब्लॉक्स यू फर्स्ट नीड टू राइट डाउन योर रोल नंबर एंड देन you need to bubble it. So the issue was that कि मैंने blocks में लिख दिया था कुछ तो गलत, 3 का 5 something like that. So the examiner, I told him and I panicked. So he comes and says, ऐसे ही लोग जो हैं सबका उत्साह कम कर देते हैं, सबके हौसले जो हैं सप्रेस हो जाते हैं. What kind of a person you are? अगर चलो जाने दो, नहीं भी हुआ तो क्या होता है तुम्हारा, अभी तो 5 अटेम्प्ट है ना. तो I got really perturbed at that time. बड़ा परेशान हो गया मैं. अब I'm not blaming that person for my failure in that attempt, but ठीक है. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि there are a lot of risks and you should be mentally prepared कि वहाँ जाके क्या होगा on the examination center. So as destiny had it, I missed the prelims by just 0.67 marks. I had got 98 and cut off at that year was 98.67. Next 2 years, I was fortunate enough to get through the prelims with decent scores, I would say. But mains nahi ho paya. I used to write what I knew. I never addressed the question. I never knew what is the demand of the question, and writing just what I know and not writing what was asked in the question. That was one of the things. The next attempt, yes, I worked a lot on my mains, but उसमें ये हुआ कि because of a few distractions, it's a long journey. You'll have people coming, people going. There can be a multiple number of distractions. So because of that, I could not clear the prelims that year. फिर मैं UPPCS भी दे रहा था. 2018 वाले अटेम्प्ट में मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, बट उसकी ज्वाइनिंग काफ़ी डिले हो गई. तब तक मेरा 2020 वाला एग्जाम निकल गया था नायब तहसीलदार. एंड आई हैड अ जॉब व्हेन चौथे अटेम्प्ट में मेरा, जैसा मैंने बताया, प्रीलिम्स नहीं हुआ था. एंड घर पे परिस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल थी. पीपल वर नॉट हैविंग ट्रस्ट इन जनरल मेरे आसपास के लोगों को. So I thought कि I need to escape this, and I decided to join this particular job. और फिर उसके बाद after joining the job I was fortunate enough to get the blessings of my seniors who used to motivate me कि you are made for bigger things, better things. And it was initiated by Shri Pramod Kumar Pandey ji. He was my SDM in Lucknow Tehsil Sadar. He pushed me to take a leave. So I went to take a leave and I decided to prepare. I wasn't disturbed that much. I used to
the workload was quite a bit. किसी तरह से मैं करता था मैनेज, बट जो ऑड आवर्स थे एटलीस्ट एक नायब तहसीलदार को ही इज एक्सपेक्टेड टू बी देयर इवन एट द ऑड आवर्स, बट माय बॉसेस वर काइंड इनफ कि आप चलो आप पढ़ाई करो, ऑड आवर्स में एटलीस्ट विल गिव यू अ रिलीफ. देन ब्रिजेंद्र उपाध्याय सर, he was my तहसीलदार, and I cherished my term with him a lot. उनका भी बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट रहा है. एंड मेरे कलीग्स थे, अमित सर थे, शालिनी मैम थे, दे वर रियली वेरी गुड. तो ये 2 साल का जो नौकरी का वो था, तो काफ़ी कुछ सीखा मैंने. Since I was in Lucknow, I got to see how the chief secretary is working, how the additional chief secretary sirs are working. It is a commissionerate. I used to see how commissioner sir, joint CP sir is working, my district magistrate Shri Suryapal Gangwar ji. So it used to give me a fillip कि भाई आपको पढ़ना है. तो मैं पढ़ता गया. फिफ्थ अटेम्प्ट में मेरा क्या हुआ कि मेरा फाइनली नहीं हो पाया इंटरव्यू देने के बावजूद. एंड आई मिस्ड बाय अ हेफ्टी मार्जिन, आई वुड से. I was again disheartened, lost hope. 4 दिन बाद प्रीलिम्स है. But the thing was that कि I have had enough now. मैं 1 साल वेट नहीं कर सकता था. So I again sat for the exam. काफी कम स्कोर आ रहे थे, लाइक 80s में. आई वाज गेटिंग समथिंग एंड आई वाज क्वाइट श्योर कि मेरा नहीं होगा. एंड आई वाज लाइक आई वाज प्रेइंग टू गॉड कि भगवान, यूपीएससी की जर्नी एटलीस्ट इस तरीके से नहीं खत्म होनी चाहिए. इतना सब कुछ दे दिया इस एग्जाम को, ये नहीं होना चाहिए. मतलब दिस वुड बी रियली अनफेयर. एंड इट वाज लिटरली सो इन अ prophetic manner, I would say, कि पता नहीं कैसे कट ऑफ ही पता चला कि इस बार 75-77 जा रहा है. आई वॉज लाइक कम ऑन, इज इट फॉर रियल. तो मैंने आ गया 14 दिन के बाद, अपना रिजल्ट आ गया एंड मेरा हो गया प्रीलिम्स में. फिर मैंने खुद को समझाया. मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था नायब तहसीलदार का, मैं ट्रेनिंग करता था और उसी के साथ मुझे पढ़ाई भी मैनेज करनी थी समाओ. तो वो भी एक काफी डिफिकल्ट टास्क था. आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम के जस्ट 10 दिन पहले ट्रेनिंग का एग्जाम भी था. 4 दिन मेरे उसमें वेस्ट हुए. बट उस 4 दिन के जो पिछला 1 वीक था ना, मैं सोया नहीं हूं, क्योंकि मुझे ये करना था कि वो 4 दिन वेस्ट होंगे. लेट अस जस्ट इंक्रीज आर स्पीड एंड आर अटेंशन एंड वट एवर. तो मैंने बहुत डेडिकेटेड वे में वो चीजें कर डाली. राइट, ठीक है. इसके बाद आई ज्वाइन माय रेगुलर जॉब. आई स्टार्टेड डूइंग द रेवेन्यू कोर्ट. अच्छा लग रहा था चीजें. फिर अगेन रिजल्ट आ गया. आई वाज सिलेक्टेड. आई वाज रियली वेरी हैप्पी. आई वाज इलेटेड. आई वेंट टू मीट डीएम सर. हम लोग महाकाल जा रहे थे, तो हैड मेट सर. तो उनको मैंने बताया कि सर आई हैव पास फ्रॉम एन आईआईटी एंड थोड़ा सा मुझे ऐसा ऐसा लगता है, फीलिंग आती है कि मेरा होना चाहिए. तो विद दैट बैकग्राउंड आई वेंट टू मीट हिम. मैंने कहा कि सर आई नीड लीव, मुझे इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट. ही वाज लाइक सिद्धार्थ, जितना अर्न लीव है करा लो. सो मैंने अर्न लीव लिया अबाउट 1-1.5 महीने का. एंड आई प्रिपेयर्ड रियली वेल दिस टाइम. पिछले इंटरव्यू में व्हाट हैड हैपेंड कि मेरी दादी की डेथ हो गई थी 2 दिन पहले, और आई वाज टेकन अबैक. नो एक्सक्यूजेस अगेन. तो ये बेसिक सी चीज थी. फाइनली इंटरव्यू था, संजीव वर्मा सर का बोर्ड था. अच्छा गया, मजा आया. और रिजल्ट आपके सामने है. 118वीं रैंक आई है. कुछ लोग कह रहे हैं मुझसे कि और अटेम्प्ट्स बचे हैं क्या आपके, आईएएस मिल जाता तो अच्छा रहता. भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो मिला है वो भी मिलने का पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था नहीं ही मिल पाएगा. मैं तो सोच रहा था मुझे कैट या जीमैट दे करके अब अपने फील्ड में जाना पड़ेगा. तो जो मिला है वो सच में सर्वोपरि है. मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन, मेरे सभी दोस्त, इनका इतना फिनोमिनल सपोर्ट रहा है एंड दे आर रियली वेरी हैप्पी.
So nothing can undermine this particular achievement. 7 साल बाद कहा जाता है कि सबकी किस्मत पलट जाती है, और शायद यही मेरे साथ भी हुआ कि मेरी भी किस्मत पलट गई, और जो चाहता था वो कहीं ना कहीं मिला। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी परेशान रहा हूं मैं इस जर्नी में, मेरा बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहा है, और मैं देखता हूं कि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इन चीजों से। आपके बड़े भाई के रूप में, जस्ट लाइक योर एल्डर ब्रदर, मैं ये समझाना चाहूंगा कि आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि हार जाएंगे तो फिर करेंगे कैसे? आए ही क्यों थे यहाँ पे? आपको तो पता था ना कि ये कितना डिफिकल्ट टास्क है। चलिए माना आप पहले या दूसरे अटेम्प्ट में बन भी जाते हैं, तो क्या ये जीत इनफ है? इज दिस विक्ट्री इनफ? नो, देयर आर स्टिल सो मेनी बैटल्स टू फाइट। और चलो मान लिया कि नहीं बने और पांचवा छठा अटेम्प्ट लग गया, तो हार नहीं मानना है, परेशान मत होइए, अपने माता पिता से प्यार करिए, उनसे बात करिए, ईश्वर को याद करिए, जस्ट रिमेंबर योर गॉड। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कविताएं भी पढ़ता रहता था, और एक बहुत ही अच्छी कविता है शिव मंगल सिंह सुमन जी की, जिसमें वो कहते हैं कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा, मगर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो इस तरह का कुछ जज्बा अपने अंदर रखें। एक बहुत ही खूबसूरत जीवन की शुरुआत है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप प्रिविलेज्ड बनेंगे, मैं ये कहूंगा कि आपको एक ईश्वर ने मौका दिया है कि आप संसार में, पूरे विश्व में भारत की ख्याति फैलाएंगे। मेक इंडिया प्राउड। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जितने लोग हैं जिन्हें मैं देखता हूं एज अ नायब तहसीलदार, मेरा हमेशा से ये रहा है कि एक दिन एटलीस्ट एक इंसान को अच्छा फील कराना है, और जो वो आंखों में उनकी चमक आती है ना उस चीज के बाद, जब उनका काम हो जाता है, वो एक सेटिस्फैक्शन देता है। उस सेटिस्फैक्शन के लिए यू शुड एस्पायर। यू शुड नॉट एस्पायर फॉर दैट गाड़ी घोड़ा एंड एवरीथिंग। इन चीजों के लिए आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप अधिकारी बनेंगे, आपको अधिकार होगा, लेकिन वो अधिकार दूसरों के अधिकार का हनन करने के लिए नहीं होगा। वह अधिकार इसलिए होगा कि आप दूसरों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। इसी के साथ मैं अपने जर्नी के बारे में जो मेरे 2 शब्द थे उस पर विराम लगाना चाहूंगा, और आगे मैं अपने जीएस की स्ट्रैटेजी और ऑप्शनल में जैसे मैंने तैयारी की उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। I'll try to throw some light on how I have prepared and how I have failed, I have learned and unlearned and again reinvented myself to get this rank, for which I am really very thankful.